morning. Am I audible? Online students, let me know. ठीक. Today we are starting with sequence and series. Here they will give you few numbers consecutively or in some kind of pattern, like in square boxes or odd, something like that. And they will ask you to find the unknown or ask you to identify the odd man out, odd number out, etc., etc. In this kind of series, there are few things that you can do. I have given you algorithm to check, to solve these kind of questions. There are few standard things that will do. Then I'll give you the algorithm for about how to solve. And after that, अगर उससे नहीं होता है तो छोड़, because there can always be a series which cannot be solved. If examiner wants, he can anyway construct anything he wants in his mind. Any pattern he can construct. तो अगर वो चाहता है कि आपसे सॉल्व ना हो तो आपसे सॉल्व नहीं होगा. बट फ्यू स्टैंडर्ड थिंग्स वी शुड बी अवेयर, वो कवर करेंगे और ये चैप्टर डन हो जाएगा. उसी से सॉल्व हो जाएंगे. 90-95% क्वेश्चन तो सॉल्व होते ही है, वो सॉल्वेबल होते हैं, इसीलिए वो एग्जाम में आते हैं. बट देयर कैन ऑलवेज बी क्वेश्चंस which are unsolvable in examination hall. And of course there are sequences of numbers. Numbers क्या आते हैं या फिर letters क्या आते हैं, ABCD या फिर different kinds of letter. This sequences can be mixed with other chapters as well. So वो भी एक variation होता है. So let us start the chapter. This topic is basically about pattern recognition. Question will give us some pattern of numbers or letters in the form of sequence or grid or some other geometrical shape. We have to crack the pattern and predict the next or missing or wrong term in the question. यही होता है question. या तुम next term predict करो या missing term, या फिर जो गलत term है उसको replace करो सही term से. ये 2-3 question के variation होते हैं. And there are infinitely many possible patterns. We can't know or study all. We can however study the most frequently appearing patterns and try to see if any of them fits in the question. And whatever things we have studied in arithmetic, geometry, English will help us in this chapter. ठीक है. अब ये है कुछ नोन पैटर्न्स, जो पॉपुलर नोन पैटर्न्स है. पीडीएफ अपलोड हुआ नहीं है क्या शगुन? I'll get it uploaded. अभी ये दिख रहा है? अभी के लिए ये दिख रहा है क्या? Is it visible? अभी के लिए देख लो. I'll get it uploaded. दोनों बैचेस में अपलोड करना है, जीएस फाउंडेशन में और 1.2 दोनों में. ठीक है, आप जब भी उठाएगा बता दें. नोन पैटर्न्स क्या है? Consecutive natural whole numbers or integers. We all know what they mean. Consecutive numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then consecutive even or odd numbers. ठीक है, 2, 4, 6, 8 या फिर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. 40, 42, 44 या फिर 39, 41, 43, etc. etc. Then consecutive prime numbers. Correct. Prime numbers we know till 100. हमें सारे प्राइम नंबर्स याद है. Then consecutive multiples of some number, मतलब कोई नंबर ले लो 3, लेट अस से उसके consecutive multiples 30, 33, 36, 39 and so on. Consecutive multiples of same number. Term is some multiple of previous number plus some fixed quantity. मतलब ऐसे कुछ होते हैं कि 5 into 3 plus 2, 17 into 3 plus 2, 53 into 3 plus 2 and so on. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 158 into 3 plus 2. ये हो सकता है पैटर्न. Consecutive terms of AP or GP, arithmetic progression or geometric progression. We'll see that in GS Foundation we already covered AP and GP.
अभी हम रिवाइज कर लेंगे डिटेल में, जब हम अरिथमेटिक 2 पढ़ेंगे तब करेंगे. कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ सम नंबर. अगेन वी नो व्हाट आर पावर्स. तो 3 की पावर कंसेक्यूटिवली 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन. ठीक है. देन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स और क्यूब्स, हमें ये भी पता है क्या होता है. देन सम ग्रुप ऑफ टर्म्स इज रिपीटिंग, जैसे कि लेटर्स में होता है ना, ए बी, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए बी सी, लेटर से ये पैटर्न है. तो नेक्स्ट होगा बी सी डी, फिर नेक्स्ट होगा सी, हाँ, सी डी ई एंड सो ऑन. ऐसा पैटर्न रिपीट होता जाता है. ठीक है. तो ये सारे पॉपुलर पैटर्न्स हैं. दिस अगेन फॉर योर रेफरेंस, मैंने लिस्ट किया है. नाउ लेट अस सी. फर्स्ट इज डिफरेंस इज इन एपी. कोई भी सीक्वेंस आपके सामने हो तो पहली चीज आप नेचुरली क्या करते हो कि आप देखते हो डिफरेंस क्या है. जूम करूं. ठीक है. Any given sequence, for any given sequence, natural thing for first thing we can do is to look for the differences between consecutive terms. Many times that difference is in AP. अब AP क्या है? AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे टाइप का एक सीक्वेंस है. पहला टर्म जिसका कुछ है A, एंड एवरी टर्म इज जस्ट एडिशन बाय अ कांस्टेंट. मीनिंग डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज D. ठीक है. ये होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस. एग्जाम्पल 1, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन डिफरेंस इफ इट इज 3, देन नेक्स्ट टर्म इज 4, फिर 7, 10, 13, 16 एंड सो ऑन. दिस इज एपी. ठीक है. या फिर कुछ और भी ले सकते हो. फर्स्ट टर्म ले सकते हो लेट अस से 50, कॉमन डिफरेंस ले सकते हो -4, देन नेक्स्ट टर्म 46, 42, 38, 34 एंड कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम. करेक्ट. ये होता है एपी. अब इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, एक बैच में पढ़ चुके हैं. यहाँ पे पॉइंट ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट कुड बी इन एपी. अब यहाँ पे अगर डिफरेंस देखे क्या है, 1, 3, 5, फिर 7, एपी है. कॉमन डिफरेंस इज 2, नेक्स्ट डिफरेंस वुड बी 9. तो 20 + 9, नेक्स्ट एक्स वुड बी 29. कुछ ट्राई करो, देखो क्वेश्चन. ओके. क्या है? हम्म. हम्म. जिस सेक्शन के नीचे है उसी का क्वेश्चन होगा ना. अच्छा, उसी के लिए पूछा यार. 72 की जगह क्या डाल दे फिर बताओ. 74 डालते हैं. खुश.
डिफरेंसेस देखने देखे, क्या रहा आंसर फिर? 45 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, क्योंकि 4 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, आएगा फिर 10, फिर आएगा 13, फिर आएगा 16। डिफरेंसेस इज आर इन एपी। ठीक है, 4 है। एपी है ना ये, फिर फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस इज 3, 4 7 10। नेक्स्ट, डिफरेंसेस निकालो। ये क्या है? 500 है, देन 450 है क्या? 450, फिर 400 होगा। दिख रहा है भाई क्या होगा आगे? दिस हैज टू बी 350 एंड दिस हैज टू बी 300। 300 इसमें ऐड भी कर सकते हो, 5864, ये होगा आंसर। हम्म, सोचो, कम करके देखो। ठीक है यश, दिस इज पैटर्न नंबर 1, द डिफरेंसेस आर इन एपी। नेक्स्ट पैटर्न, डिफरेंसेस आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ही होता है थोड़ा थोड़ा। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आल्सो वी हैव फर्स्ट टर्म, एंड इंस्टेड ऑफ कॉमन डिफरेंस लाइक देयर वाज इन एपी, वी हैव कॉमन रेशियो। तब कोई नंबर आर होता है, उससे चीजें मल्टीप्लाई होती रहती। एवरी नेक्स्ट टर्म इज प्रीवियस टर्म इनटू आर। ठीक है, so if we have first term is 1 and common ratio as 2, then next term is 2, next term is 2 into 2, this into 2, this into 2, this into 2, and so on. This is geometric progression. Or we can take any like 10, and common ratio we can take again 2, next term is 20, next term is 40, 60, and so on. Sorry, not 60, 80. 2 से multiply, every new term would be multiplied by 2. Or you can have some, let us say 500, and common ratio can be half. So next term is 250, next term is 125, next term is 62.5, and so on. So common ratio is half. ठीक है, जीपी समझ गए क्या होता है? द सीक्वेंस इटसेल्फ आल्सो कैन बी जीपी। ये सीक्वेंस दे ही सकते हैं आपको, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या है? एक्स, राइट? द सीक्वेंस इटसेल्फ इज अ जीपी, करेक्ट? जीपी के डिटेल्स विल स्टडी लेटर। फाइन, करना वही है यहाँ पे भी, दैट फाइंड आउट द डिफरेंसेस एंड सी इज देयर एनी पैटर्न। 3 5 9 17 33 एक्स। हाँ, यहाँ पे क्या है देखो, 2 4 8, देन क्या होगा नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म वुड बी differences are in GP, correct? हम्म, ठीक है, देखो आगे, सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस।
हम्म। कर रहे हो ना? हम्म। देख लो फिर से एक बार। हम्म। हम्म। आ गया। गुड। लास्ट आंसर ही दिया है मैंने। क्वेश्चन था कि फाइंड आउट एक्स, आंसर मैंने दे दिया है। देख लो वही आ रहा है क्या लेकिन। लास्ट का आ रहा है। ओके। वो शायद सबका आ रहा है। फर्स्ट दो। दिस डिफरेंस इज 4, 2, then 1. Next here is half. So you see that this is a GP with common difference, common ratio 1 by 2. Next would be 1 by 4. 33 by 2 plus 1 by 4 is 67 by 4. वो है आंसर। पॉइंट में निकालोगे तो आपका आ जाएगा 16.7। नेक्स्ट इज दिस इज 5, 10 समथिंग समथिंग। क्या आ रहा है? अच्छा 15, सॉरी 5। ये आ रहा है। ठीक। लास्ट आ गया? नहीं आया? देखो तो कौन से सेक्शन के नीचे है, इसलिए आंसर दिया होगा मैंने कि आपको नहीं आएगा इस। देखो ये क्या है डिफरेंस? 3 -3 रादर, -3 है ना, देन +9, देन -27, देन +81। दिस इज जीपी विथ कॉमन रेशियो -3। फिर नेक्स्ट टर्म आती है यहाँ पे -243 होगा। इफ यू डू द सब्ट्रैक्शन इट विल बी -153। लगा दो।
गाइस आप भी चेक कर लो, अपलोड हुई है क्या पीडीएफ? आई थिंक इट हैज बीन अपलोडेड। अपलोड हुई है, आप एक बार देख लो। नॉट येट। अपलोड करवा दो, नहीं हुई है बोल। ओके ओके। हम्म हम्म। ठीक है, समझ गए लास्ट वाला? ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज माइनस, कॉमन रेशियो इज -3, और वो जीपीए। नेक्स्ट, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ सम अदर नोन पैटर्न, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स। डिफरेंस ही देखना है, बट अब डिफरेंसेस कुछ और पैटर्न फॉर्म करेंगे, लाइक कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स और क्यूब्स, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सेम नंबर, और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची बता दूंगा मैं। फिबोनाची बताया आपको? फिबोनाची कुछ नहीं है, इट्स अ सीक्वेंस attributed to Fibonacci, but it was known in India much before that. We have proofs. फर्स्ट टर्म 1 ले लेते हैं, सेकेंड टर्म भी 1 ले लेते हैं, एंड नाउ एवरी नेक्स्ट टर्म इज एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। 1 + 1, 2 + 1, ये है फिबोनाची सीक्वेंस। ये नहीं पूछेगा, बट अगेन पूछा तो हमें ही आना चाहिए बस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट शुड बी, अगर पैटर्न खुद नहीं दिख रहा है कुछ, देन लुक एट द differences. That will be first instinct. 3, then 3, अच्छा 2 है क्या? 2, 3, 5, 7 क्या दिख रहा है? ऑड है? प्राइम है? अरे तो 9 आया तो नहीं है ना? दीज आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स है ये, रटने चाहिए। फर्स्ट 4 मैंने बोला था 100 तक अपने को एकदम ऑन द टिप्स होने चाहिए। दीज आर फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वुड बी, आंसर वुड बी 33। यस यस करेक्ट। आ गया आंसर, क्या बात है। व्हाट आर द डिफरेंसेस? दिस इज 400, दिस 441, दिस इज है। हाँ, these are consecutive squares. Square of 20, 21, 22. Next should be square of 23, which is 529. If you add, you will get डिफरेंसेस देखे हमने फिर से। 400, 441, 484, क्या है ये? स्क्वायर्स है कंसेक्यूटिव नंबर्स के। ठीक, नेक्स्ट। 3, 6, करेक्ट, इट विल बी 35।
अगर दो ऑप्शन सिंपल सीरीज से सही आ रहे हैं अबीर, तो दोनों भी सही दिए जाएंगे अल्टीमेटली। बट जो ज्यादा ऑब्वियस है वो फिर कंसिडर किया जाता है, इफ बोथ आर नॉट ऑब्वियस। क्योंकि अगर तुम अपने पे आ ही जाओ तो कुछ ना कुछ जबरदस्ती का पैटर्न ढूंढ ही लोगे, ऐसा नहीं करना होता। द पैटर्न विच इज क्लियरली विजिबल, द पैटर्न विच इज ऑब्वियस, दैट इज द पैटर्न दे आर लुकिंग। यहाँ पे तो कुछ वो नहीं, यहाँ पे तो प्राइम नंबर्स है नहीं, ये लोग डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज प्राइम नंबर्स, वही पैटर्न है यहाँ पे, कोई दो आंसर्स है नहीं। लास्ट देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग आइटम। रॉन्ग है 45, क्या होना चाहिए उसकी जगह पे? क्यों रॉन्ग है 45? हम्म। 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 नहीं। हम्म। देख लो, एक बार देख। टर्म्स देखो कंसेक्यूटिव, 1 2 3 5 8 13। 2 3 5 8 13 आना चाहिए। हाँ, इफ आई रिप्लेस दिस 45 बाय 44, तो क्या आएगा? 5 और यहाँ पे 8 आएगा। इफ आई रिप्लेस दिस 44 5 बाय 44, अब डिफरेंसेस बता दो। 2, अब आ गया फिबोनाची। हम्म। क्यों अश्विनी, क्यों लग रहा था आपको 39 रॉन्ग? देखो मेरे दिमाग में क्योंकि फिबोनाची था तो मैंने ऐसा पैटर्न सेट किया। अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि आपके सॉल्व ना हो तो मैं कर सकता हूँ ना ऐसा कुछ भी क्वेश्चन सेट, क्योंकि देयर आर इन्फिनिटली मेनी पैटर्न्स, आई कैन ऑलवेज सेट अ क्वेश्चन व्हिच इज नॉट सॉल्वेबल। बट प्राइम नंबर से एक नंबर चेंज करोगे तो दोनों चेंज हो जाते हैं ना, पहले वाला डिफरेंस चेंज होगा तो आगे वाला भी होगा। हाँ। हाँ,
बिल्कुल वो नहीं होता, प्राइम नंबर्स का नहीं होता था। हम्म। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि देर आर फ्यू स्टैंडर्ड थिंग्स यू कैन चेक, यू कैन डू। अगर उससे ना हो तो देर कैन ऑलवेज बी अ क्वेश्चन विच इज नॉट सॉल्वेबल इन एग्जामिनेशन, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। इन 90-95% ऑफ द केसेस क्वेश्चन विल बी सॉल्वेबल, इसी में से कोई ना कोई पैटर्न बैठ रहा होगा, वो रिकॉग्नाइज करना है और सॉल्व करना है। नहीं हो विद इन रीजनेबल टाइम, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज division of consecutive terms. Here we simply divide the second term by first term, third term by second term, fourth term by third term, and so on. We do this especially when first term decreases and then increases, or if the sequence increases at a very fast pace. जब दिख रहा है कि sequence is increasing at very rapid pace, then it can be powers or division. कितना rapidly हुआ, otherwise addition से तो change नहीं होती चीजें, addition या difference से. If the difference is increasing very fast, then we can try division. और if ऐसे हो रहा है कि sequence is पहले decreasing and then increasing, first increasing then decreasing, ऐसा कुछ चीज हो रहा है, then it will be about ratio या फिर division. क्योंकि एडिशन में डिफरेंस लेते रहोगे तो पहले डिफरेंस कम हो फिर बढ़े, उससे ज्यादा ये पॉसिबल रहता है। ऐसा हो रहा है तो पहले डिवीजन चेक करो, पीवाई क्यू से भी यही हमें पता चलता है। whenever there is a sequence which is first decreasing and then increasing, it is question on consecutive term का डिवीजन। when we divide consecutive terms like second by first, third by second, fourth by third, etc., the resulting sequence of number can be again same number आ सकता है, same ratio रह सकता है, मल्टीपल्स रह सकते हैं, एपी रह सकता है, जीपी रह सकता है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स, क्यूब्स, फिबोनाची, ये सब रह सकता है। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल देखो। हाँ, यहाँ पे देखो 10, 15, 30, 75, अचानक से 225 बन गया। तो इफ यू टेक रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, 15 by 10 इज 1.5, 30 by 15 दिस इज 3, नेक्स्ट वुड बी 3.5, आंसर वुड बी 25 into 3.5। ये क्या है अपने आप में, दिस इज एपी। एपी है ना, ये हाफ, कॉमन डिफरेंस इज हाफ। तो ये जो सीक्वेंस आता है रेशो का, दैट इटसेल्फ कुड बी एनी वन ऑफ द पॉपुलर सीक्वेंस, एपी, जीपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, एटसेट्रा, मल्टीपल्स। रेशो कैन रिमेन कांस्टेंट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4, 8, 24, 120, 840, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इट कुड बी, ये ऐसे एडिशन से तो होगा नहीं, ऐसी चीज है, मल्टीपल से हो गए होगी ऐसी चीज। 2, 3, रेशो देख ले रहा हूँ, 5, देन 7, प्राइम 9 आएगा, 11 आएगा। तुम 9 को प्राइम लेने की क्या गलती कर रहे हो? 11 आएगा, तो नेक्स्ट वुड बी 840 इंटू 11, जो भी आंसर, कॉमन रेशियो इज, दैट इज वन पैटर्न। अब ये फिबोनाची जैसा है कि प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रीवियस 2 और 3 और मेनी टर्म्स इज करंट टर्म। जैसे कि इन फिबोनाची सीक्वेंस एवरी टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। इन सेम मैनर every term could be sum of 3 previous terms, every term could be product of 2 or 3 or all of the previous terms, every term could be sum of squares or cubes of previous terms and so on। पैटर्न अगर सेट करना चाहे एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है, यही बात है। बस आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ दिस पैटर्न्स। इसका एक आइडेंटिफायर है कि 2, 2, 1, 1, 1, फिबोनाची में 1, 1 से स्टार्ट होती है चीजें। तो अगर 1, 1 से स्टार्ट हो रही है या फिर 2, 2 से स्टार्ट हो रही है, 3 मतलब रिपीट नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो इट कैन बी दैट, इट कैन बी इधर, जैसे 1, 1 और 2, 2, 4, 8, मतलब 2 + 2 4,
प्लस से नहीं हो रहा, प्रोडक्ट से देख लो। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 4 32, 32 into 8 would be the answer. या फिर ये 1 1 1, अब देखो ये फिबोनाची जैसा ही अगेन, 1 + 1 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 + 1 9 एंड सो ऑन। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये तो एवरी क्वेश्चन के लिए ट्रू है ना, कि इफ रीजनेबल टाइम में ना हो तो आपका आगे तो बढ़ना ही है। बट ये क्लिक भी हो सकता है सामने देख के, तो होने को तो 10 20 सेकंड में भी हो सकता है, नहीं होने को 15 मिनट में भी नहीं होगा, अब उसमें क्या है। नेक्स्ट। हम्म 1² + 2²। हम्म हम्म, ठीक है, ऐसे भी पैटर्न्स हो सकते हैं मोस्टली। हाँ। नेक्स्ट इज, अब अल्टरनेट टर्म्स आर रिलेटेड समटाइम्स, एंड वो दिया भी जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व दैट अल्टरनेट टर्म्स ज्यादा पास पास है, देन ये लोग सीक्वेंस बनाते हैं अपना अलग से, और ये अलग से सीक्वेंस होता है एक। तो देर आर टू सीक्वेंस विद इन वन, एंड मोस्ट प्रोबेबली दोनों चीजें एक ही तरीके से चलेगी, पैटर्न ऑफ दोज बोथ सीक्वेंसेस वुड बी सेम। हाँ, वही होगा, देखो ये 2 2 2, ये क्या है, 2 अगेन 2, बट सब्ट्रैक्शन में 2, दिस वुड बी, है ना। इस केसेस में पैटर्न सिंपल होता है। वेरी ऑफन कंसेक्यूटिव टर्म्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, बट अल्टरनेट टर्म्स फॉर्म द पैटर्न that are run parallelly in same or different pattern, maximum times same pattern. We have to mostly identify the pattern in between alternate terms. Such patterns can be any of the standard ones. AP हो सकता है, GP हो सकता है, then वही multiples, primes, squares, cube, Fibonacci, etc. Correct. But pattern would be within alternate terms का sequence rather than consecutive. ये आया भी है, ऐसे PYQs है अपने पास. एंड फाइनली, कि अगर कुछ भी ना हो, देन वी हैव टू ट्रीट ईच टर्म एज आइसोलेटेड। एक टर्म का अगले टर्म से कोई रिलेशन है नहीं वैसे, बट देर इज सम अदर पैटर्न दैट इज फॉर्मिंग, लाइक ईच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टर्म्स, बट सीक्वेंसेस ड्यू टू अंडरलाइंग नंबर सिस्टम लाइक नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर्स एक्सेट्रा। लाइक nth टर्म इज सम ऑफ n स्क्वायर एंड n क्यूब, या फिर nth टर्म इज डिफरेंस बिटवीन n स्क्वायर एंड n क्यूब। जैसे कि अब ये PYQ भी है, ऐसे नहीं कि हवा में पढ़ा रहा हूँ मैं कुछ। जैसे n फर्स्ट टर्म इज 1³ 1² + 1³ 1 + 1 ना 2, which is 1² + 1³। next term is next is हाँ, next is तो नेक्स्ट पूछेगा x, इट वुड बी 150 और 5³ + 5, या फिर ये भी दिया था शायद PYQ में, ये भी 150 दिया था और आगे का पूछा।
ये होता है पैटर्न. तो दिस पैटर्न, वैसे ईच टर्म इज नॉट रिलेटेड. तुम डिफरेंस निकालो, डिवाइड करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला इसको. हियर द पैटर्न इज ड्यू टू अंडरलाइंग नंबर सिस्टम. एवरी टर्म इज रिलेटेड टू its position in the number system, या its position in the sequence. ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है. सिमिलर पैटर्न कुड बी 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर. कितना होता है? नेक्स्ट कुड बी 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर. तो ये पैटर्न होगा वो. तो हियर एवरी टर्म इज स्टैंड अलोन या फिर इंडिपेंडेंट. तो कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं बनेगा, रेशियो या फिर एडिशन वगैरह टाइप. सीक्वेंस बनेगा कुछ ड्यू टू inherent position of the term. If nothing else works, each term can be independent of next or previous term, and we have to find out what it is that makes each term special. देखो, each term is n cube minus n square. Here 4 9. तो next term क्या होगी यहाँ पे? देखो, this is 5 cube minus 5 square, 6 cube minus 6 square. Next would be 7 cube minus 7 square. Or what is 7 cube? What is 7 cube? 7 cube क्या है? देख लो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ये सब रटना चाहिए. क्या कर रहे हो यार, ऐसे मत करो. 294. हम्म. Next, each term is a square of successive prime number. 2 square, 3 square, 5 square, 7 square and 49, 11 square. Next would be 13 square, which is 169. Yes, ठीक है. ये है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की कहानी. एल्गोरिदम मैंने एंड में दिया है कि इफ यू गेट अननोन सीक्वेंस, हाउ डू यू अप्रोच. वो लेकिन बहुत ही बिना दिमाग चलाए एल्गोरिदम लगाना है तो लगा लो, थोड़ा दिमाग चलाना है तो थोड़ा क्विकली हो सकता है. लाइक इन सम केसेस यू माइट एक्चुअली सी दैट यहाँ से डिवीजन में काम होने के ज्यादा चांसेस है, वो पहले लगा लो. मैंने जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस या फिर एल्गोरिदम जो दिया है, दैट इज जनरल एल्गोरिदम. इफ यू गेट अ जनरल सीक्वेंस, वो एल्गोरिदम आप लगा सकते. दिस इज नंबर्स का स्टोरी. अब है अल्फाबेट्स, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स. इसमें दो तीन टाइप के वेरिएशंस आते हैं. फर्स्ट इज sequence of English alphabets are arranged in some pattern, and in this type of questions the pattern is mostly one of the following. Group of 2 3 4 5 repeats or follows some pattern. This is the most popular one. Okay, ये दिया होता है, and whatever is at the question mark you have to find out. A B A B A B A A A B A B, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, देख रहे हो. A B A A B A B A A B A B A A B, then A B A A B, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है. करेक्ट. नेक्स्ट केस में हम्म. 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 ए बी सी ए बी सी ए बी, उधर तक ही लिखा है मैंने. ठीक है. नेक्स्ट. हम्म. हम्म.
ऐसा कुछ हो रहा है? हम्म, ये देखो, ए बी बी ए, बी सी सी बी, सी डी डी सी, डी ई ई डी, ये आ रहा है। ए बी बी ए, बी सी सी बी, देन सी डी डी सी, एंड देन डी ई ई डी। 4 4 का पैटर्न रिपीट। इसको करने का एक तरीका होता है। नहीं, फर्स्टली, फर्स्ट स्टेप, जितने भी स्पॉट्स है वो गिनो, कि मतलब यहाँ पे लेट से कितने हैं, वन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्पॉट्स है। 16 किससे डिविजिबल है? 4 से। 4 का पैटर्न रिपीट हो, ये होता है। होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने अलग एक क्वेश्चन दिया है वैसे, बट इन यूपीएससी और इन एनी अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन ये पैटर्न होता है। अगर 20 है तो इधर इट विल बी 4 और 5, इफ इट इज 18 इट विल बी 6। ठीक है, जनरली नहीं देते। हाँ, वही है, ये पैटर्न होता है। पहला स्टेप गिनने का कितने हैं, और फिर उससे डिविजिबल कितने लोग हैं, और उस हिसाब से पैटर्न ढूंढना। ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरनेट अल्फाबेट्स आर रिलेटेड। जैसे अल्टरनेट अल्फाबेट्स, सी डी ई एफ जी एच, अल्टरनेट अल्फाबेट्स। एंड लास्ट इज, if nothing else is visible, convert these alphabets into numbers, it will make them visible. उसके लिए whenever you see any kind of question, just quickly within 10 seconds write this. M तक, M is the 13th letter, और फिर उल्टा लिखना है। इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है तो नहीं लगता ज्यादा टाइम। इट इज वर्थ, अगर 2.5 मार्क मिल रहा है, इट इज वर्थ डूइंग दिस। इसके फायदे हैं, ऐसे लिखने के फायदे क्या है? फर्स्टली यू गेट द नंबर्स, करस्पॉन्डिंग नंबर्स। यू डोंट हैव टू लुक फॉर, एक बार पहले ही जाते हुए रफ पेज में बना दोगे तो भी चलेगा ये। जो वेटिंग पीरियड होता है पेपर आने के पहले, वो 5 मिनट में ये बना दो, हो जाएगा। अदरवाइज, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट बेनिफिट इज यू गेट नंबर्स, करस्पॉन्डिंग नंबर्स। सेकंड बेनिफिट इज यू गेट पेयरिंग। पेयरिंग पे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यू गेट पेयरिंग। थर्ड बेनिफिट इज, ऐसे ए टू जेड लिखोगे तो जेड पे खत्म हो जाती है चीजें, बट हियर इट्स अ सर्कल। अब तुम्हें लेटर से 3 3 लेटर आगे जाना है हर, इफ द पैटर्न इज 3 लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर, यहां से स्टार्ट हो रहा है। 3 लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर, 3 लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर, 3 लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर, अब 3 लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर, इसके बाद नेक्स्ट लेटर ये आता है। वो आपको ऐसे दिखता है, सर्कुलर पैटर्न। तो ऐसे लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, लिखा करो। ठीक है, कुछ नहीं है, एम तक लिखना है। एम इज द 13th लेटर, और फिर एन से लेके इस साइड उल्टा लिखना। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है। हम्म, हम्म, हम्म।
convert the alphabets into corresponding numbers and it will clear the pattern. अब इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, but if you convert it into numbers, what is PQ, PQR, PQRS, PQRST, अभी यहाँ पे दिख भी रहा है, बट अगर तुम नंबर्स में कन्वर्ट करोगे ना, P इज 16, तो एकदम दिख जाएगा आपको 16 17 16 17 16 17 18 16 17 18 19 एंड सो ऑन. अब दिख गया ना क्लियरली. अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कन्वर्टेड इनटू नंबर्स, पैटर्न दिख जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अब देखो, बी सी ई, अब कुछ तो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चलेगा, बट इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू नंबर्स, बी इज 3, दिख गया क्या है. नेक्स्ट वुड बी, दैट वुड बी द आंसर. 17 के लिए क्या है, क्यू. ठीक है. हाँ नहीं, अरे ये लिखना है जाते ही, डू दिस. हाँ ये है ना ऊपर लिखे हुए पोजीशन के नंबर्स, इसीलिए लिखना है ये सब कि टाइम ना लगे. हाँ नहीं, वो तो आपको अननोन था ना. ठीक है, यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेट्स में, और कुछ नहीं आता. हाँ हाँ हाँ, अरे मैं एल्गोरिदम दिया है मैंने आपको, ये लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसमें टाइम लग सकता है तो इसको स्पीड में लाने के लिए प्रैक्टिस करो. विद इन 1-1.5 मिनट हो जाए तो सही बात है, वरना मूव ऑन कर जाओ. सबसे आसान होते हैं ये वाले, जितने भी दिए हैं उतने पॉकेट्स में रिपीटेशन होते हैं. 18 है तो 6-6 रिपीटेशन होगा, 20 है तो 4 या 5 का रिपीटेशन होगा, मोस्टली 5 का ही होगा. ठीक है. और अगर कुछ भी ना हो तो कन्वर्ट देम इनटू नंबर्स, उससे हो जाए. हाँ हाँ. algorithm, fundamentally this chapter is about pattern recognition, or with your knowledge, experience and trial and error, we can still follow the following algorithm to ease our troubles. अब क्या है, फर्स्ट इज इफ सीक्वेंस इज ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सीक्वेंस है, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज द सीक्वेंस इटसेल्फ एपी जीपी, वो चेक करना है पहले. सीक्वेंस खुद ही अगर एपी जीपी या स्क्वायर्स या प्राइम्स या क्यूब्स या मल्टीपल्स है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल चेक, राइट. वो दिख भी जाएगा आपको कई बार, या फिर एपी चेक करने के लिए डिफरेंसेस तो निकालोगी. सेकंड थिंग, डिफरेंस, दैट इज द मोस्ट नेचुरल थिंग दैट कम्स टू यू, कि यार सीक्वेंस दिया तो डिफरेंस निकाल के देखता हूँ. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म, पहले ये चेक करोगे सबसे पहले कि उससे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, कुछ भी पैटर्न. पैटर्न कौन से, ये सारे पॉपुलर पैटर्न. अगर नहीं काम करता है देन अल्टरनेट टर्म्स, उस पर कुछ पैटर्न बन रहा है क्या. Do this first if the alternate terms are close or consecutive terms are very far from each other. Next is division of consecutive terms. If numbers are decreasing and then increasing, check this first. पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, या फिर पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये पहले चेक करना है. ठीक है. If numbers are increasing too fast, then check if numbers are multiplication or addition of previous 2-3 terms, या फिर check for squares, cube, addition of squares, addition of cubes. And lastly, try to study each isolated term to unearth something special about it. Check if other terms follow this pattern and do this in the end. बाकी सब हो जाए तो ये देखना है क्या क्या करना है. पहले पहले देखना है कि पैटर्न सीक्वेंस इटसेल्फ इज सम एपी जीपी
प्राइम्स, ऐसा कुछ है क्या? सेकेंड इज डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस निकाल के, डिफरेंसेस एपी है क्या, डिफरेंसेस जीपी में है क्या, डिफरेंसेस कुछ और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्या, वो चीज। थर्ड, अल्टरनेट टर्म्स में कुछ रिलेशन है क्या? इफ अल्टरनेटिव टर्म्स आर एकदम कंसेक्यूटिव टर्म्स आर वेरी फार, देन अल्टरनेट पहले चेक करो। देन इफ डिवीजन, स्पेशली इफ इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, ये तो डिवीजन ही होगा मोस्टली, वो पहले चेक करना है। एंड देन वी कैन हैव, हाँ, इंक्रीजिंग ट्रू फास्ट, तो लास्ट के दो का मल्टीप्लीकेशन वगैरह ऐसा कुछ चीज है क्या? हाँ, क्यूब स्क्वायर है क्या? एंड लास्टली फिर अब कुछ ना हो तो फिर देख लो फिर उस पोजीशन को लेके कुछ स्पेशल है क्या। ये है आपका ओवरऑल एल्गोरिथम। ठीक है। अल्फाबेट पहले तो चेक करना है कि क्या हो रहा है, मतलब बस ए बी रिपीट हो रहा है, या फिर ए बी के बाद थोड़ी देर बाद सी आ रहा है, थोड़ी देर बाद डी आ रहा है, थोड़ी देर बाद ई आ रहा है, मतलब पैटर्न आगे बढ़ रहा है कि स्टैटिक है। इफ ओनली ए एंड बी आर रिपीटिंग तो पैटर्न स्टैटिक है, तो इजी होगा। इफ ए के बाद बी, बी के बाद थोड़ी देर बाद सी आ रहा है, थोड़ी देर बाद डी आ रहा है, तो फिर पैटर्न इज नॉट ओनली स्टैटिक बट इट इज इन मूविंग एज वेल, मूविंग पैटर्न है, जैसे हमारा इस क्वेश्चन में था लास्ट में।